On the one side, we have the big hard drive. Show you, but okay, we got a HDD, and then we have the primary memory. It's called a primary memory, the RAM, random access memory. Then we have the cache memory. In fact, the L1, L2, and L3. Then there is a CPU. The registers, the memory of the CPU are called registers. That is the ultimate, it's the fastest one. We don't have faster than the registers, any memory. Then the next fastest, the same technology roundabout, is the cache. Okay. Then after cache, there is RAM, which is a little slower than cache, but it is a little bigger. Then we have hard drive, which is hell slower, but it is huge. Okay. So why are we doing this? Is called as a memory hierarchy. We call it as a memory hierarchy. Now, why we are doing memory hierarchy? It is because of reference of locality. Okay, I will give you a simple example. For example, I have here the mason who is building this wall. Okay, at a time, how many bricks he can work? One. Just one brick. He can work on a one brick. But to build this whole house, it may need thousands and thousands of bricks. So say this house has your program, which has one brick as a one line of code, one instruction. Okay, so that means to build this whole program, we have 1,000 lines of code, but your processor, who is the mason here, is working on one line only. So do you need the whole bricks at a time when the mason is working to build this wall? No, he needs at a time one brick, but not just one brick, because he also needs the second brick, because he should not wait for the, when he finishes the first one brick, the second brick should come in, then the third brick should come in. So if I give some 10 bricks there in front of the mason and he is working on one brick, will he be idle anytime? No, he's finishing one brick, he has 10 bricks there, he can get the next brick, right? Now Sir. when these bricks are finished, in the meantime I bring other bricks also there, I will keep on supplying it. But the whole bricks, which are the, say, 10,000 bricks this house had, okay, so those bricks I'm not keeping here, because if I keep my locality into perspective, then it is like 5 crore a land here, it's getting touching to the 4 crore now land. Okay, so if I have to just store those bricks here, I need 4 crore first to spend on a land so that I can have all those bricks here. Okay, or I can do a trick. I know my processor is working on one instruction only, let me keep all those bricks in some other place, far away place, which is slower. From that it may take time, but the processor को बिठाना नहीं है, क्योंकि उसको जितना काम करना है उतना मैं ला के रखूंगा, जब तक वो ये काम कर रहा है तब तक मैं दूसरा ला के रखूंगा. But it will be cheaper for me, rather than buying a whole land for those storing the bricks. I will keep bricks little far away, maybe on road and there on where it is a free space, or where I don't have to pay and all that. So same way here we work, because we want, what we want is a space of elephant. We want space of elephant. Okay, but we want speed of rabbit. We want speed of rabbit, but at the same time, I want storage of elephant. So I want a fat storage, but speed should be faster. Because if you see HDD, it's very slow. I told it's magnetic. Yesterday I showed you also. And your processor is very fast. But what I do is my whole program, which is a huge program, that has to be in a RAM. Any program running has to be in a RAM. But we also create some space called in a hard drive called virtual memory. The virtual memory is deemed as if it is RAM, even though it is not RAM. So what I do is basically I have some program which is huge program. Okay, like I told you, my house, to build the house, it's a huge program. So it has 1,000 lines of code. From these 1,000 lines of code, I put this much into the RAM, some space in a RAM here.
okay, and rest of it in the virtual memory. But this is deemed as virtual memory is deemed as if it is in RAM, because if you want to run some program, it has to be in a RAM. But I am keeping half of it into the virtual memory. Okay, we call this a virtual memory. Why? Because this is not actually memory, this is actually hard drive, but I am deeming it as RAM. So जहां पे ये प्रोग्राम पहले आपने इंस्टॉल किया था वो हार्ड ड्राइव में यहाँ पे था कहीं पर, जब मैंने इस पे डबल क्लिक किया इंस्टॉल, जब मैं रन कर रहा हूँ इसमें से मैं आधा ला रहा हूँ रैम में, आधा डाल रहा हूँ वर्चुअल मेमोरी में, लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये सारी रैम है, चाहे ये या वर्चुअल मेमोरी, मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये सारी रैम है। अब ये वर्चुअल है, ये रियल है, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मैंने इतना भी लाया, इसमें मान लीजिए 500 लाइंस ऑफ कोड है या 100 लाइंस ऑफ कोड है, इफ 100 लाइन ऑफ कोड में प्रोसेसर को एक इंस्ट्रक्शन करेगा एक टाइम पे, उसको एक ब्लॉक 10 इंस्ट्रक्शन मान लीजिए मैंने उठा के यहां से लाई वो कैश में, ठीक है। क्यों ये बाकी स्पेस किस लिए है रैम को? क्योंकि और भी प्रोग्राम्स मुझे करने हैं, जैसे अभी मैं वन नोट भी खोल रहा हूं, मेरा जूम भी खुल रहा है, ठीक है, और मेरी विंडोज भी चल रही है, मेरे और भी पेंट भी यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप भी खुला हुआ है, ये सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे, सारे प्रोग्राम्स रैम में होने चाहिए। तो आधे रैम के अंदर होंगे, आधे इनका हिस्सा वर्चुअल मेमोरी में होगा। उस आधे में से भी मैं कुछ ही लाइंस ऑफ कोड डालूंगा कैश में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी कि भाई साहब अगर आप ये लाइन ऑफ, अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप ये लाइन ऑफ कोड कर रहे हो, सो ये गारंटीड है कि उसके बाद यही लाइन ऑफ कोड, दूसरा लाइन ऑफ कोड होगा, उसके बाद तीसरा लाइन ऑफ कोड होगा। इसलिए मैंने अगर ये ब्लॉक उठाया है, ठीक है, तो इसी में से एग्जीक्यूट होगा। हाँ, अगर फंक्शन कॉल है तो फंक्शन कॉल के वक्त आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जब फंक्शन कॉल होगी, जो आपने ब्लॉक यहां से उठा के कैश में लाया होगा, अब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब वो फंक्शन वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इसलिए हमें उस वक्त क्या करना पड़ेगा काम, ये सारा फ्लश करना पड़ेगा, वो फंक्शन वाला कोड लाना पड़ेगा इनटू द कैश। इसीलिए जो सी में गो टू स्टेटमेंट है, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट जो आपके सी के अंदर है, वो आपको कहीं से भी उठा के कहीं पर भी ले जाती है, वो हमने बैन कर दी सारी प्रोग्राम लैंग्वेज में, हम उसको नहीं करते, क्योंकि वो रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी को ब्रेक करती है। रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी, ये देखो ना आप, इसका मतलब सीधे लोकेलिटी मींस क्या, आप कहते हो ना सर मेरी लोकेलिटी है, मतलब जहां पे आप रहते हो उसके इर्द गिर्द। सो रेफरेंस मींस एड्रेसिंग, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन इस वक्त हो रही है, इसका चांसेस है कि इसके बाद वाली जो इंस्ट्रक्शन है वही एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद उसके बाद वाली जो है वही एग्जीक्यूट होगी, ठीक है ना। तो इसलिए अगर मुझे प्रोग्राम बहुत बड़ा है, मैं इस लाइन पे कोड पे काम कर रहा हूं, अगर मैंने ये ब्लॉक उठाया है, मान लीजिए 10 लाइंस या 100 लाइंस मैंने उठाई है इसमें, सो उबेर सबत से क्या नियंत्र किसका एग्जाम नहीं करना चाहिए खरी, what's the problem with you? If you're not interested, just leave the class. You don't know how to sit in a class. एग्जाम नहीं करना क्या था, मैं ताकि नहीं एग्जाम चुक शेंगे। If you're not interested in class, just leave. So what I am saying is कि अगर आप ये लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन कर रहे हो, यानी कि जैसे मेरे पास ये बुक्स हैं, इसमें मान लीजिए ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बुक्स हैं, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स हैं, ये इसकी बुक है, जब मैं इस लाइन ऑफ कोड पे काम कर रहा हूं तो यकीनन मैं उसके बाद ही लाइन पे कोड करूंगा, यही रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी होता है। तो इसी वजह से मैंने मेमोरी हायरार्की बना चुका हूं, क्योंकि मुझे सारा प्रोग्राम जो इतना बड़ा 1000 लाइंस ऑफ कोड का था, मुझे वो जरूरत नहीं है सारे का सारा, तो फिर दैट मींस कि दैट हैज टू बी इन अ कैश, आई कैनॉट हैव दैट कैश, या ये फिर तो मुझे कैश का ही सारा ही बनाना पड़ेगा, या तो मुझे कैश रैम सारी कैश की बनानी पड़ेगी और सारा प्रोग्राम रखना पड़ेगा कैश के अंदर, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कोड बहुत बड़ा भी है, आप इस सारे कोड में से एक छोटा सा ब्लॉक उठा के वो कैश में डालते हो, क्योंकि इसी वक्त काम हो रहा है, और जब तक आपने ये फिनिश किया तब तक मैं दूसरा लाता हूं। तो यानी कि मेरे पास स्लोअर डिवाइसेस में रख सकता हूं, स्लोअर डिवाइसेस, और फास्ट डिवाइसेस छोटा रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं ऐसा कहूंगा नहीं, क्यों मैं जमीन लेके रखूंगा, सारी ब्रिक्स यहां रखूंगा, मुझे फायदा नहीं आएगा, बल्कि कॉस्ट बढ़ेगा। जो मेरा मैसन है 10 म्यून सुबह ने तो क्या तमिस ब्रिक जरूरत अक टाइम, अच्छा मे पता ब्रिक लगान अम पे ब्याक ब्रिक जरूरत मे थो तमिस सो दैट वो बैठेगा नहीं कभी।
तो मुझे कोई फायदा नहीं है कि मैं पूरा 4 करोड़ का पहले लैंड खरीदूंगा वो ब्रिक्स के लिए फजूल में। तो अगर हम वो करते तो फिर हमारा जो सिस्टम होता, क्योंकि कैश मेमोरी हमें लगानी पड़ती बहुत बड़ी, तो जो आपका सिस्टम 50,000 में आता है वो 2 लाख में आ जाता। ठीक है ना? तो हमने एक इसमें कॉस्ट बैलेंस भी कर दिया और हमारी एफिशिएंसी भी ठीक है। सो वी गॉट द स्पेस ऑफ एलिफेंट एंड स्पीड ऑफ रैबिट, क्योंकि मैं काम तो इस पे कर रहा हूं, कभी इस पे काम ही नहीं कर रहा हूं जब तक, क्योंकि अगर सीपीयू को हार्ड डिस्क पे काम करना पड़ता तो ये बहुत स्लो हो जाता, लेकिन इसको इस पे काम करना ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब तक ये कैश में काम कर रहा है तब तक मैं यहां से लाता हूं थ्रू द रैम इनटू द कैश बाकी चीजें। ठीक है? It is because of reference of locality, because what reference locality says is if you are working on this instruction, it is most obvious that the next instruction in the blocks will be executed after this. So I get up this thing and into the cache. There is some chat going on. Let me see. Oh, there's a long text from someone. Ehsan Fayaz. Ifzan. It behavior process that it refers to the same memory block. It has two types, spatial and temporal local. Very good. You have got a complete description of it. Okay, but you should have talked about it, not just writing. Any block, then chance of next data would be within the previous block, है ना? यही मैं जो बता रहा था. Temporal, if the data is not available in the cache, then it will be referred to the main memory, and temporal locality copy is the same देखो अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि according to the temporal locality, कि भैया अगर वो वहां पे नहीं मिला, अगर वो वहां नहीं मिला, अगर वो कैश में नहीं मिला तो किधर जाना पड़ेगा? तो रैम से लाना पड़ेगा. अगर रैम पे भी नहीं मिला वर्चुअल मेमोरी में होगा, फिर वो लाना. That's called cache miss. That you will read in detail in your next year when you read computer organization and cache architecture. वहां आपको कैश का आर्किटेक्चर पढ़ोगे, वहां ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी. अभी मुझे इतना सारा नहीं करना था, मुझे सिर्फ इतना करना था कि reference of locality means if you're executing this instruction, the next instruction in the locality will be used. So therefore, if my whole program is huge, I do not need to actually get the whole program in the cache. I will get only small blocks. So I can afford to have this smaller, and I will keep RAM little larger, and I can keep hard disk as big as like, because my processor is not working on hard drive, and I can have a slower device here, which is cheaper. Okay, and I can have a fast device here, which is smaller. So even though it is fast and it is small, so it will not cost too much. So overall system cost will not be that much, and this thing is called memory hierarchy, and we do it because of the reference of locality. ठीक है ना? Okay. अब हम वापस आते हैं फ्लिप फ्लॉप्स के, जो हमारा कॉन्सेप्ट था. So जो हमारे फ्लिप फ्लॉप है उसमें, yes, question. सर ये रजिस्टर्स है ना, ये क्या काम करते हैं? Registers, or who is speaking firstly? मैं अदनान. Where are you? Let me see your face first. Adnan. I'm not able to see you. Where is Adnan? Can you raise your hand? सर I'm not able to locate the Adnan. There's a lot of students here. Adnan, I got it now. Okay. Yes, you are the regular student. Nice. So registers का जो आपका CPU है, ठीक है? CPU को फर्ज कीजिए आपको इंस्ट्रक्शन है, you have to add 2 + 2. So पहले ये 2 कहीं पे स्टोर करना है ना, प्रोसेसर तो काम तो प्रोसेसर करेगा, तो इसको कहीं पर ये 2 लाना पड़ेगा ना, पहले कहीं पे रखना पड़ेगा ना स्टोर करके. So it does it in the register. Registers is the memory. आपने सुना नहीं, मैंने अभी बताया पहले आपको ऊपर. Registers are memory of CPU. जो CPU के अंदर अपनी मेमोरी होती है प्रोसेसर के अंदर, that's called registers. यानी कि जिनके ऊपर ये लाएगा, जैसे 2 इधर लाया, दूसरा रजिस्टर, मान लीजिए ये accumulator है, accumulator is one of the register. We have AX, we have BX, DX, CX, a lot of registers we have. So ये 2 लाएगा फर्ज कीजिए इसमें, फिर इनको ऐड करेगा and all that. So registers is the, what is register? Yes, Adnan, it is the, no, I'm asking you back, Adnan Mehraj, what is a register? Adnan Mehraj, I'm asking you back now the same question. What is a register now? Register is the memory of, yeah, lip reading कर रहा हूँ मैं एहसान का, लेकिन you should open the mic and say it is the memory of CPU. That's it.
चैट क्यों कर रहे हो आप लोग, सीधे क्यों नहीं बोलते हो? अदनान महराज हुकूमत ये अब आ गया फिर से, आवाज नहीं आ रही है। Okay, he's rejoining, don't worry. So anyways, now we talk about the flip flops, and in flip flop we have a one issue of 1-1 state, because we said if this is my NAND gate and this is another NAND gate, and this is my clock, and this is the J and this is the K. If I want to make it JK, right now it is the S and R. And what is the problem we are facing with this? That is the 1-1 state. So if both are 1 and 1, okay, it will be unreliable. Okay, it will have that problem of which gate is faster, which is slower, and all that. So to mitigate this problem, what we do is we want to use that 1-1 state. Okay, we want to use that 1-1 state, and now we call this flip flop as JK flip flop. But this JK flip flop need to do something to fix that. So what we do here is I will change my pen color. Okay, let it be black. This is my Q and Q complement. It gets another feedback loop, additional feedback loop from Q complement. It comes here and goes to this NAND gate, and from this Q it goes here and goes into this NAND gate. By doing this extra feedback loop, we can work with the 1-1. I have given you the video 2-3 days back. You must have seen that. Okay, so you should be all ready to tell me what is happening here. So if now what happens is now the output which is coming, if we talk about this latch, it has these outputs coming back to the input of it. Now I am having the total output which is coming from this whole flip flop back to these NAND gates, which are clock circuitry. Okay, so what will happen by that? What will happen is, if it is this, say for example it was set, say for example it was set, now because they have to come back. Now if we have, say for example 1 and 0, if it's 1 0, and if this was set already, so this 1 will come from here. Okay, so that means this becomes 1, and it is immaterial what other, the clock is 1 all the time. If the clock is 0, it won't work. If the clock is 1, okay, but this K is 0. So if K is 0, what will this NAND get output? 1. It will output 1, immaterial what other inputs are. This is 1, and it is getting 0 from this side. It is getting 0 from this side. Okay, so what will be the output of this NAND gate? 1. 1. So we have 1 1 to this latch. What is the 1 1 state to the latch? Memory state. It's a memory state. So it will retain this 1 0, because it makes sense, because if it is 1 0, we want to make J as set. J means set. This is S and R kind of thing, but we now call it JK. I don't know why they have named it JK, because it was S and R, it is same S and R, but they call it J and K to differentiate between other circuits and this one. So in JK we also use that 1 1 state also. Now फर्ज कीजिए ये सेट नहीं था, ये रीसेट था. So ये अगर मैं J1 K0 रखूंगा, इसको ये सेट बनाएगा. तो कैसे? देखिए ये यहां से 0 आ रहा है, ये यहां से ये लूप आ गया, 0 आ गया. So when the one of the inputs is 0, what is the output going to be? 1. 1. Now this one comes 1 from this side. So इसमें सारे 1, ये भी 1, J भी 1, clock भी 1. So what will be output? 0. 0. So जब इस लैच को 0 ऊपर आएगा, what will it do? And 1 नीचे आएगा. It will set. It will set. Now you should all be telling. Are you not watching the videos for revision and all? You should tell it without eyes closed now. This will set. So it will, ये इसको set बनाएगा. Set means 1 and 0. So हो गया ना set. So if I have here, I will write it my clock. This is my J, this is my K, this is my Q and Q complement, and this is state. So अगर मेरा clock पहले कुछ नहीं है, तो फिर ये तो कुछ नहीं होंगे, वो छोड़िए उस वक्त. लेकिन जब clock 1 होगा, जब clock क्या होगा? 1, उस सूरत में बताएं,
जब J होगा, अगर मेरा J 1 है और K 0 है, उसको क्या हो गया ये सेट। 1 0 अब अगर मैं 0 1 करता हूं, क्या करूंगा, आई विल गिव इट 0 1। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये सेट था, ये 1 0 था यहाँ पे, ठीक है ना। तो दिस इज क्यू कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए ये सेट था, ये 1 था, ये 0 था। अब मैं इसको यहाँ पे 0 लगा रहा हूँ, यहाँ पे 1 लगा रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि मैं चाहता हूं कि ये रीसेट हो। सो अब मैं यहाँ पे इसको 0 लगाता हूँ, यहाँ पे 1 लगाता हूँ। अब देखें, क्योंकि अब खाली इन इनपुट्स की बात नहीं होगी, अब इन आउटपुट्स की भी बात होगी साथ में, क्योंकि दीज आउटपुट्स आर कमिंग बैक। बिकॉज सीक्वेंशियल सर्किट में जो करंट इनपुट्स हैं और प्रीवियस आउटपुट हैं, दोनों को मिला के हमें आंसर निकलता है। सो इसलिए मुझे ये आउटपुट देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से फीडबैक, एडिशनल फीडबैक लूप है। तो ये 1 यहाँ से, या ये वाला 1 है ना, तो ये 1 यहाँ से आ रहा है। सो ये तीनों 1 बन रहे हैं, 1 1 1। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ इट? 0 0 यहां से ये 0 जा रहा है और ये खुद भी 0 है। व्हाट विल बी आउटपुट? 1 1 So to this inside latch, we have 1 on the top, 0 on the bottom. What will it do? reset reset So it will reset. It will become 0. It will become 1. So it will reset. So that's what we are saying. It will reset. अगर ये already reset था, 0 1 था, अगर ये already reset था, तो क्या होगा? तो यहां से ये 0 आएगा. What will be output of this NAND gate? 1. आउटपुट होगा ना 1, क्योंकि जब ये 0 यहां से आया, जब एक इनपुट 0 है NAND गेट को, आउटपुट इज गोइंग टू बी 1। और यहां से ये 1 आया, लेकिन इसको 0 यहां से है ना, इनपुट 1, सो आउटपुट हैज टू बी 1। 1 So it is 1 1 state to this. What is 1 1 Mem- state to the latch? memory state memory state So it will retain the reset state. तो ये सेट और रीसेट बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे आपका SR लैच कर रहा था, लेकिन SR लैच में 1 1 में परेशानी हो रही थी। जो 1 1 स्टेट थी, SR लैच में 1 1 में परेशानी हो रही थी, उसको हम सॉल्व करेंगे अगर बोथ 1 1 है। ठीक है, देखिए मैं इसको पहले रब करता हूं, आप देखें आराम से। अगर दोनों क्या है, 1 1 स्टेट है दोनों, अगर मैं दोनों दे रहा हूं 1, यहां पर भी 1, फर्ज कीजिए ये पहले सेट था, अगर ये मान लीजिए क्या था, सेट, तो अगर मैंने 1 1 दिया, क्योंकि SR लैच में अगर ये 1 1 देते थे तो उसमें Q और Q कॉम्प्लीमेंट का फर्क ही खत्म होता था, वो दोनों सेम निकलते थे, है ना, वो प्रॉब्लम थी। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 1 यहां से आएगा and it will be all 1 1 1 and clock 1. What will be output of this? 0 ये 0 यहां से आएगा, so बाकी तो 1 1 है, लेकिन एक इनपुट है ना 0, so what will be output of this? 1 1 1 So 1 0 to this circuit, what is it? 1 0 to the latch. reset That means it 1 becomes 0, this 0 becomes 1. Okay? तो अब ये फिर से ये जो इनपुट्स हैं, ये फिर से ये आउटपुट फिर वापस आएंगे, क्योंकि क्लॉक जो हमारा होता है, जो एक क्लॉक है, जब तक क्लॉक पल्स है तब तक ये काम करता रहेगा। ठीक है, जो इनपुट्स यहां से आए और आउटपुट निकले, कि कितना टाइम इसमें लगा इनपुट्स को आने में और आउटपुट निकलने में, इसे कहते हैं, दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन, फर्ज कीजिए आपने एक स्विच दबाया, फिर आप बंद करते हो, ठीक है, आप क्लॉक ऐसे देते हो ना, बीप्स, यू गिव बीप, 1 बीप क्लोज, तो सेकंड बीप क्लोज, थर्ड बीप क्लोज। जो ये बीप है उसका कुछ टाइम है ना, एक बीप का। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा आपको कि मैं बीप करूंगा, आप बोलना कुछ, आप काउंटिंग करना 1 2 3 4। ठीक है, आप 1 0 1 0 1 0 बोलना, ऐसे बोलना, मैं आपको बोलूंगा, मैं करूंगा बीप, मुझे इतना टाइम लगता है एक बीप में, आप इतने में 2-3 बार कर सकते हो 1 0 1 0 1 0। यानी कि वही मसला कि जब क्लॉक यहां से आएगा, उसकी कुछ डिले है ना, कुछ टाइम है उस क्लॉक पल्स का, उतने में इसने इनपुट दे के यहां गया, अभी वापस ये आउटपुट वापस आएंगे ना, क्योंकि ये यहां से तार लगी है ना, फिर से फीडबैक लूप की, ये वापस आएंगे, क्योंकि अभी एक्टिव है ये गेट बंद नहीं हुआ, स्विच ऑफ नहीं हो गया, क्योंकि अभी जो इसने ये आउटपुट निकाले, वो इतने क्लॉक में निकाले, इतने क्लॉक में, अभी इतना क्लॉक बाकी है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वापस आएगा यहां से। अच्छा, तो आएगा तो क्या प्रॉब्लम करेगा हमें, क्या देखेंगे कि अब
ये जो है ये वाला 1 है, अब है ना ये वाला 1, ये वाला 1 यहां से आएगा, सो तीनों 1, आउटपुट विल बी 0, और ये 0 इधर जाएगा, सो एक जब 0 है तो आउटपुट विल बी 1, सो इट इज 0 1 नाउ, 0 1 मीन सेट, सो ये 0 को 1 बनाएगा, 1 को 0 बनाएगा, इस तरीके से फिर से वापस आएगा। अब रीसेट बन गया, फिर सेट बन जाएगा, फिर रीसेट बनेगा, फिर सेट बनेगा, जब तक ये पूरी क्लॉक पल्स खत्म नहीं होगी। जो ही क्लॉक पल्स खत्म हो गई 0 हो जाएगा, अब ये वापस नहीं आ सकता, तो तब तक इसे बोलते हैं टॉगल। क्या बोलते हैं? यानी कि जब तक ये गेट है, ठीक है, मैं इनपुट दे रहा हूं, यहां से आउटपुट दे रहा हूं, लेकिन मैं इसको पहले एक क्लॉक सर्किट दे रहा हूं, करंट, जब तक क्लॉक सर्किट है तब तक चलता जाएगा ये। मैंने एक क्लॉक पल्स दे दिया, खटाक, इसने इनपुट्स दे दिए इसको, लेकिन ये वापस आ रहे हैं ना, अभी तो ये चल ही रहा है ना, अभी क्लॉक पल्स खत्म नहीं होगी, ये वापस आएंगे ना, तो इसने टॉगल कर दिया, ये वापस आ गए, इसने टॉगल कर दिया, अब क्लॉक पल्स खत्म हो गया, अब ये बैठेगा, लेकिन जब तक क्लॉक पल्स है तब तक ये चलता जाएगा, ठीक है ना। अगर क्लॉक पल्स उतना ही होता जितना मेरा प्रोपेगेशन डिले है, यानी कि यहां से इनपुट आए और यहां से आउटपुट गया, अगर इतना ही टाइम का क्लॉक पल्स है, फिर एक क्लॉक पल्स में एक ही बार टॉगल होगा, है ना। लेकिन क्लॉक पल्स थोड़ा लंबा होता है देन द प्रोपेगेशन डिले ऑफ दिस गेट, गेट इज वेरी फास्टर देन द क्लॉक पल्स, गेट इज वेरी फास्टर, ठीक है। और एक क्लॉक पल्स में मल्टीपल टाइम्स ये करेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू बिल्ड अ क्लॉक पल्स सेम टाइम एज दैट ऑफ प्रोपेगेशन डिले ऑफ दिस गेट। व्हाट इज प्रोपेगेशन डिले? इनपुट आया और आउटपुट निकल गया, इसका कितना टाइम लगता है इस गेट का? वो बहुत छोटा है, लेकिन क्लॉक पल्स बहुत बड़ा है, यानी कि एक क्लॉक पल्स में मल्टीपल टाइम्स ये वापस आके टॉगल करेगा। लेकिन वन वन स्टेट अनरिलायबल नहीं बनेगा, वन वन स्टेट हमारा क्यू एंड क्यू कंप्लीमेंट को तोड़ेगा नहीं, ठीक है ना, बल्कि अगर ये सेट था इसको रीसेट बनाएगा, अगर रीसेट था तो सेट बनाएगा, तो कुछ मिल गया हमें। पास में आ रही है? मेरे पास तकरीबन 4 मिनट से अभी। सो मैं मगर चाहता हूं कि ये अनकंट्रोल्ड नहीं हो, कि ये वापस आ रहा है फिर सेट से रीसेट, रीसेट से सेट बन रहा है, ये अनकंट्रोल्ड नहीं हो, ये एक क्लॉक पल्स में एक ही बार करे, ये एक क्लॉक पल्स में ये टॉगल कितनी बार करे? एक बार करे। वो कब मुमकिन है बताओ? मास्टर स्लेव। मास्टर स्लेव बनाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन वो कब मुमकिन है? अगर मैं ऐसे करूंगा विदाउट मास्टर स्लेव, जब मेरा क्लॉक पल्स का टाइम कितना होगा? प्रोपेगेशन डिले के प्रोपेगेशन डिले के बराबर होगा, है ना, ठीक है। बात में आ रही है? देखिए, आपको इनपुट्स आ रहे हैं और आप आउटपुट दे रहे हो, यानी कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं, क्योंकि आपको फीडबैक लूप लगा है, आपने सर्किट लगाया है, इसका फीडबैक लूप है, यहां से वापस आता है, ठीक है, ये यहां से निकल रहा है, यहां से वापस आ रहा है, फिर आउटपुट दे रहा है, वापस आ रहा है। और मैंने एक क्लॉक पल्स के, जब मैं क्लॉक पल्स होगा उतने टाइम ही करेगा, मैंने कहा क्लॉक पल्स ये गया, लेकिन इसको अभी क्लॉक पल्स चल ही रहा है, ये तो आएगा ना, ये तो क्लॉक पल्स बंद नहीं होगा। अब अगर क्लॉक पल्स का टाइम उतना ही है जितना इसको टाइम लगता है, तो एक क्लॉक पल्स में एक ही बार ऐसा होगा, है ना, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल, कि डू तो प्रोपेगेशन डिले जितना मेरा होगा उतने का ही क्लॉक पल्स बनाना वो मुमकिन नहीं है। इसलिए मेरे पास मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्यों बना रहा हूं पहले बताएगा कोई? व्हाई आई एम मेकिंग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप? सो दैट माय टॉगलिंग हैपेंस ओनली वंस इन ए क्लॉक। वंस ठीक है, देखिए ये मेरा, ये इसका क्लॉक है, ये है ना मेरा, जैसे मैं कर रहा हूं ये। लेकिन अब हम क्या करते हैं काम, हम ऐसा ही दूसरा गेट लगाते हैं यहां पे, बिल्कुल ऐसा ही, और इसको क्लॉक सर्किटरी, ये रही क्लॉक सर्किटरी इसकी, दिस इज नैंड गेट्स, थोड़ा सा ये लिखने में हो रहा है, इसको क्लॉक मिल रहा है अपना, और इसको वो जे एंड के फ्लिप फ्लॉप मिल रहा है अपना, जे एंड के इनपुट्स मिल रहे हैं इसको। लेकिन ये जो क्लॉक है मैं इसको इन्वर्टर लगा के इसको दे रहा हूं, ठीक है। सो ये दोनों एक ही साथ काम तो ऐसे ही करेंगे जैसे ये करेगा काम। अब हम वन वन स्टेट पे काम करते हैं, और जो ये जो फीडबैक लूप लास्ट वाला है वो यहां से उठ के आएगा फीडबैक इस वाले के साथ, लास्ट वाले के साथ, ठीक है, ये जे भी इसके साथ है, सॉरी, और ये वाला उठ के आएगा यहां से
इसको मिलेगा, ठीक है। ये मैं के इसको क्यों दे रहा हूं, मैंने गलत किया यहाँ पे, के और ये वाला जे, ये इस क्लॉक के साथ है ना, ये जे इसके साथ है और एक के इसके साथ है, 3 इनपुट्स। अब देखिए क्या होता है, we have 1 minute left, just try to see it, okay. Let me take one screenshot, print screen, Control V. One second, let me take the other guy's screenshot, because there is other guys also, na. Second screenshot, file, new, सेव करो इसको, टाइम ही नहीं मेरे पास यहाँ से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आज का डेट है 14/7 है, 14/7, कंट्रोल V, बाद में सेव करूंगा मैं। एनीवेज ये मैंने प्रिंट स्क्रीन किया ही नहीं, सॉरी। FNN प्रिंट स्क्रीन, अगर इसे कट गया ना, we will join again for 5-10 minutes, हाँ। Okay, now look here, ये भी कटेगा, हाँ ठीक है ना। इस मास्टर स्लेव को फिनिश करेंगे, 5-10 मिनट लगेंगे हमें। रिजॉइन विद मी। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर इज कि ये देखें, बाकी तो वैसे ही काम करेगा, हम 1-1 स्टेप पे काम कर देखेंगे कि टॉगल क्या एक ही बार करेगा या नहीं करेगा।